Hello students, now today we are going to start new chapter, that is lesson 12. In the previous chapter already we have discussed so many tools, the features of PowerPoint. Okay, now today we are going to learn how we are going to learn some more new features. Okay, how we can add a new slide. Okay, how we can change the slide layout, how we can select number of slides, how we can work in slide sorter view by selecting group of slides, by copying, deleting slides, how we can change the background of slide, okay, how we can insert header and footer, how we can insert pictures from different places, from clip art, from internet, how we can edit an image, how we can insert objects, how we can select the objects, how we can group the multiple objects. Okay, so I am going to complete up to this topic today, and after that you will create this summer camp as given as an activity zone in your practical file, in practical. Okay, so let's start the first topic, how we can add a new slide. So I have opened a PowerPoint. If you want to add a new slide, you have two options: either press Ctrl plus M, okay, or either you can click on home tab. In home tab you will find the slide group. In this slide group you can see new slide. Okay, you can select any slide, it's your choice. And the second is modifying a slide layout. Slide layout पे मैंने आपको बताया था we have different placeholders. Okay, the layout means होता है arrangement of placeholders. So if you want to change the, suppose I want to change the layout of the first slide, I don't want this layout, I don't want these two placeholders. So what can I do? Just select the first slide, click on layout and select anyone which you want. Suppose I want this comparison. So in this way select the slide and you can change its layout. It's your choice. Okay, so both the options you will get in slide group in the home tab. Now next is working in slide sorter view. As you can see I have taken 5 slides. Okay, and these 5 slides, if I want to make changes in them, if I want to move and select a group of slides, I will go in view, slide sorter view. Okay, here you can see there are 5 slides. Okay, now what I want to do, suppose I want to select 2 slides. तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, पहले मैं हर स्लाइड पे एक डिफरेंट कलर अप्लाई कर देती हूँ. अप्लाई टू ऑल मत करना. इफ यू वांट विल क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल, तो इट विल अप्लाई ऑन ऑल. Okay, but I don't want to apply the same color, so it's up to you. I am doing this so that I can show you some different thing. Okay, so don't click on apply to all, right click on it, format, any blank space on the slide, format background, which texture you want, close. Don't click on apply to all, because अगर आप apply to all पे click करोगे तो it will apply on the all the slides. So you can see I have applied different colors. Now अगर अब आपको इसको move करना है, select करना है, तो you have two options. If you want to select first and second, if it is in continuation, so you can hold down the shift key, select the first slide, hold down the shift key and then select second slide. So you can see these two slides are selected. Okay, now both the slides you can drag. अब सपोज आपको फर्स्ट नंबर की स्लाइड और थर्ड नंबर स्लाइड को 4 और 5 के आगे करना है, या यू वांट अप्लाई समथिंग ऑन फर्स्ट एंड थर्ड, तो जब फर्स्ट एंड थर्ड आर नॉट इन सीक्वेंस, तो जब आप ऐसी स्लाइड सेलेक्ट करना चाहते हो विच आर नॉट इन सीक्वेंस, तो यू कैन यूज़ द कंट्रोल की. तो पहली स्लाइड को सेलेक्ट करिए विच यू वांट टू सेलेक्ट एंड होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड सेलेक्ट द थर्ड. Okay,
अब ये दोनों साइड सेलेक्ट हो गई हैं, तो फिर इफ़ यू डोंट वांट टू सेलेक्ट द स्लाइड्स इन सीक्वेंस, रैंडमली यू वांट टू सेलेक्ट, तो आप कंट्रोल की का यूज़ करेंगे। एंड सपोज आई वांट टू चेंज एनीथिंग, आपको फॉर्मेटिंग करनी है, मूव करना है, कटिंग करनी है, कोई भी एक्स वाई जेड यू वांट टू डू, फॉर्मेट बैकग्राउंड करना है, सपोज मुझे इन दोनों का कलर सेम चाहिए, या आई वांट टू अप्लाई दिस, ठीक है। सो दीज टू स्लाइड्स आई हैव सेलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल की, सो इट इज़ अप्लाइंग चेंजेस ओनली ऑन दीज टू। और अगर आपको सीक्वेंस में सपोज फर्स्ट सेकेंड थर्ड या थर्ड फोर्थ फिफ्थ या फोर्थ फिफ्थ चाहिए, तो होल्ड डाउन द शिफ्ट की। सो इन दिस वे वी कैन डू। अब कॉपिंग पेस्टिंग इट्स वेरी इजी। सपोज आई वांट टू मेक द कॉपी ऑफ दिस स्लाइड, जस्ट सेलेक्ट इट एंड मेक अ कॉपी। नाउ आई वांट टू पेस्ट इट ऑन द फर्स्ट, तो ये आप देखिए कर्सर, इट अपीयर्स कर्सर, इट डिस्प्लेस कर्सर, तो कर्सर जहाँ पे होगा वहीं पे आपकी स्लाइड पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। सो इन दिस वे, अब ये इसमें आई एम टेलिंग यू इसमें कंटेंट्स कॉपी हो जाते हैं बट बैकग्राउंड विल नॉट कॉपी, ठीक है। तो इसीलिए जो स्लाइड है वो ब्लैंक आ रही है। जैसे मैंने इसको कॉपी किया, नो आई वांट टू पुट आफ्टर 4, माय कर्सर अपीयर्स हियर, पेस्ट। तो बैकग्राउंड कलर कॉपी नहीं होता, बट अगर इस स्लाइड के अंदर कंटेंट्स होते तो वो इजीली यहाँ पे पेस्ट हो जाते। तो आप इस तरह से कॉपी, अब डिलीट करना है, जस्ट सेलेक्ट दैट स्लाइड and delete. Okay, so in this way we can do multiple functions in the slide sorter view. अब background color मैंने आपको बताया, you can change in normal also in slide sorter view. It's very easy. suppose मुझे slide का background color change करना है, तो layout के अंदर नहीं, प्लेस होल्डर के अंदर नहीं, कहीं भी ब्लैंक स्पेस, लेआउट से ब्लैक सॉरी प्लेस होल्डर से बाहर आप राइट क्लिक करेंगे कहीं पे भी, एंड यू विल सी फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन। अगर आप कंटेंट के अंदर करोगे तो फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन नहीं आएगा, तो प्लेस होल्डर से बाहर ट्राई करना, राइट क्लिक करना, फॉर्मेट बैकग्राउंड। नाउ यू कैन सी सॉलिड फिल में आप एक सिंगल कलर फिल कर सकते हो, ठीक है। अगर अप्लाई टू ऑल करेंगे तो सब पे आ जाएगा। तो ये आप नहीं करना चाहते तो कंट्रोल जेड मैंने प्रेस कर दिया। ग्रेडियंट में ग्रेडियंट्स टेक्सचर्स हैं, देखिए रेक्टेंगुलर, इट्स योर चॉइस, सो मैनी टेक्सचर्स आर गिवन। पिक्चर में अगर आपको क्लिपबोर्ड से कोई पिक्चर अप्लाई करनी है, कोई फाइल लेके, ठीक है, सपोज इसमें आप पिक्चर को भी बैकग्राउंड बना सकते हो, इंसर्ट, ये देखिए, तो पिक्चर विल बी डिस्प्लेड एज अ बैकग्राउंड, द पिक्चर एज अ टेक्सचर। ओके, सो इन दिस वे रीसेट करना है तो आप फिर से रीसेट कर सकते हो। तो इन दिस वे वी कैन डू। सो दिस इज हाउ वी कैन चेंज द कलर ऑफ द बैकग्राउंड। अब इसमें आपके, अगर आपको लगता है कि कलर्स आपके अकॉर्डिंग नहीं है, जैसे सॉलिड फिल है, तो आप और भी कर सकते हो, ठीक है। कलर बटन पे क्लिक करो, मोर कलर्स के अंदर ये ऑप्शन भी आ जाएगा। कस्टमाइज भी कर सकते हो, सपोज ब्लू में ही आप कस्टमाइज, इसको एरो को ड्रैग करके देखिए नीचे कलर प्रीव्यू आ रहा है, नाउ यू वांट टू अप्लाई दिस कलर, सो इट्स योर चॉइस। उसके लिए आपको कलर के अंदर मोर कलर्स में आना पड़ेगा, एंड देयर यू कैन मेक द कलर ऑफ योर ओन चॉइस। सेलेक्ट कर लो, इसको ड्रैग करो, एंड यू कैन मेक द कलर ऑफ योर ओन चॉइस। इज दैट क्लियर? बट अप्लाई टू ऑल पे करोगे तो इट विल चेंज ऑन ऑल द स्लाइड्स, सो ये आपको ध्यान रखना है। देन इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर, ठीक है, उसके लिए आप इंसर्ट टैब पे जाओ, अंडर द टेक्स्ट टैब, ये देखिए हेडर एंड फुटर ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब आपको सपोज डेट एंड टाइम अप्लाई करनी है, जो भी 7 जनवरी, ठीक है। अगर फिक्स्ड और ये अपडेट ऑटोमेटिकली, मतलब जब भी डेट चेंज होगी तो अपने आप वो स्लाइड में, स्लाइड नंबर, फुटर में अगर आपको कुछ भी लिखना है, ठीक है, अप्लाई टू ऑल, ये देखिए जितनी भी स्लाइड्स हैं सब में नीचे फुटर आ गया है, ठीक है, डेट, आपका टॉपिक एंड पेज नंबर। सो इन दिस वे वी कैन चेंज द एवरीथिंग, ठीक है। हेडर पे भी आप कर सकते हो, जैसे अभी हेडर है, अगर आपको हेडर पे लिखना है कंप्यूटर, ठीक है, तो नोट्स एंड हैंडआउट्स में जाओ, अप्लाई टू ऑल, ठीक है। बट लेट मी टेल यू, इसमें हेडर पे जो है ना अप्लाई होता नहीं है, ठीक है, इसमें दिया हुआ है हेडर एंड फुटर, बट स्लाइड्स में हेडर पे अप्लाई नहीं होगा,
ठीक है, ये देखिए मैंने कर रखा है बट इट विल नॉट अप्लाई। स्लाइड्स में आप हेडर में अप्लाई नहीं कर सकते बट फुटर पे आप इजीली अप्लाई कर सकते